نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں جو اس الائنس کو چلاتے ہیں. چونکہ آج ہمیں یہاں کشمیر ٹریڈرز فیڈریشن کی سینٹرل لال چوک کی طرف سے بھی ایک یادداشت ملی کہ ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ ہونا چاہتے ہیں، جس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. قبل اس کے بہت ساری ٹریڈرز فیڈریشن نے ہم سے اس بات کے لیے ریکویسٹ کیا تھا، چونکہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. یہ یہاں پبلک کا کام ہو رہا ہے، یہاں کسی کا گھریلو کام نہیں ہو رہا ہے، یہاں ذاتی مفاد کسی کو نہیں ہے. جو عیان ہیں ہمارے یہ جو پریس والے بیٹھے سارے، ان کو بھی پتہ ہے ہم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو یہ ایلیگیشن ہوگی کہ ہمارا اپنا گھر کا کام کرتا ہے. اس نے اپنے ذاتی مفاد سے کام کیا ہوا آج تک، اس نے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بنایا ہے. ہم چونکہ صاف ستھرے لوگ ہیں، نہ ہمیں کسی سیاست کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں. ہم پبلک کے نمائندے ہیں، پبلک کا کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بھی جڑنا چاہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کو بھرپور تعاون دیں گے اپنا. ہمیں بھی امید ہے جس کسی کو بھی آنا ہوگا آئے، ویلکم. لہٰذا میں آج یہاں پر ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام بھائیوں سے جو ٹریڈ کے ساتھ منسلک ہیں، وہ سب آئے، ملے جٹے. کام بہت سارے ہیں، یہاں بہت تکلیف ہوا ہے لوگوں کو، وہ پتہ ہے آپ کو آج کل بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. ہماری آواز ہے یہ کہیں تک پہنچانا ہے، اور ممکن ہے، امید ہے جب ہم سارے جڑ جائیں گے ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے. باقی آپ سب کو یہاں جانتے ہیں، یہاں کوئی کسی کا تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہمارے ٹریڈرز فیڈریشن کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے کیا نام ہے جو ایسوسیشن کے ہمارے ایسوسیٹ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، جو عقایا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی محتاج نہیں ہے کسی تعارف کی. ہمارے یہاں فخر ڈار صاحب بیٹھے ہیں، یہ کو چیئرمین ہیں کشمیر اکنامک الائنس کے. تو ان کی وساطت سے بھی ہم بہت آگے ہم نے اس کو لے گیا تھا آج تک، مگر بدقسمتی ہے کچھ لوگ بیچ میں اڑچنیں ڈالتے ہیں جن کو ذاتی مفاد ہوتا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے آئندہ کوئی ایسا عنصر اس پہ نہیں گھسے گا، اور نہ ہم انشاءاللہ گھسنے دیں گے. امید ہے صاف ستھرے لوگوں کے ہم نوکر ہم ساتھ ساتھ چلیں گے، رات دن کام کریں گے پبلک کے لیے. اور اگر کسی بھائی کو یہاں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں لال چوک ٹریڈرز فیڈریشن سینٹرل کے، یہ بھی اپنے تاثرات دیتے ہیں. السلام علیکم، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. السلام علیکم معززین حضرات، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. آج کا یہ جو ہماری گیدرنگ ہے، یہ ایک ہمیں یہ صلہ دیتی ہے کہ جو کشمیر اکنامک الائنس ہے، ہم ان کے ساتھ منسلک ہو رہے ہیں، ایفیلیشن ہماری ان کے ساتھ ہے. تو آج ہم بڑی خوشی سے یہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہماری اسٹرنگتھ اس سے کافی بڑھ جائے گی. جو ہمارا ٹریڈ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس میں خاص وجہ یہی ہے کہ ہماری جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جیسے کے ایم ایف ٹی کشمیر ٹریڈیشن میں، وہ کافی کمزور ہو چکی ہے. وہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے کمزور ہوئی ہے، اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. اب کچھ ایسا ہمیں لگا کہ ہم بھی کہیں اس مصیبت میں نہ الجھ جائیں، تو ہم نے آج یہ آپ کے سامنے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم کشمیر اکنامک الائنس کے ساتھ ایفیلیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. فاروق احمد ڈار صاحب جو چیئر پرسن ہیں اس اکنامکس الائنس کے، اور مسٹر رنگا صاحب، تو میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی میں باقی جو ہمارے ساتھ وابستہ ایسوسیشن کمیٹیاں ہیں، میں ان کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ ہو جائیں. ہم کشمیری میں کہتے ہیں اب زیانہ وہ سوری نت ونکس یہ کڑان مے زنگ بہ کڑان یمس زنگ، یہ کڑان یمس تہ گوس نہ گژھن کی. یہ یونٹی یہ ہاوٕنۍ اسہِ، یہ چھِ أکِس ٹریڈرس خٲطرٕ تہِ، أکِس بزنس کلاس ہر أکِس خٲطرٕ چھِ یہِ، کیونکہ تۄہہِ چھو پاے حالات کۭتیاہ چھِ سنگیٖن ییٚتہِ کٔشیٖرِ منٛز. کٔہۍ تانۍ ہیوٚتُن ییٚتہِ گژھُن یِمن بزنس نہ
सुधरन मगर अत मज कर पानवनी कर इसलिए once again I request the respected people here yim yat sit wabast they support us, they appreciate us. You know, as kariu ye hey kya kor, don't say this, say we appreciate everyone. I should trade variya comes. We want this trade very powerful, because trade it's a backbone of our J&K unity. अगर ये पावरफुल ऐसे अधिशेष अगर ये पावर इसमें हमारा ज़ाती कुछ we don't have any personal relations with this. इसके have we got any salary? इसमें का तनख्वाह निमान ये आवाम के लिए एक गरीब दुकानदार के लिए हम यहाँ बैठे हैं. हम अपनी पूरी efforts जितनी हमारी है we will play with that efforts. हम खेलेंगे उसके साथ और एक गरीब से गरीब जो ग्रॉस रूट लेवल का जो ट्रेडर है हम उसके लिए भी खड़े हो जाएंगे. बाकी आप सबको की दुआएं होनी चाहिए. इंशाल्लाह द फ्यूचर विल डजलिंग एंड चार्मिंग. मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब फरहान कुताबा साहब से ये भी अपने कुछ तासुरात देंगे. invitation invite आमत करने यमो कोर्मुत यकजा पान यह असल स्टेप दपान बत गम यम चीज गन ये ट्रांसपेरेंसी बे ट्रेडरन हंद हक जन तो सफर करान चाहे सह ट्रांसपोर्ट चाहे सह फुटफॉल चाहे सह बैंक चाहे टैक्स सेक्टर ईगोज गसन साइडस थवन यम डिस्कस गसन एज अ ब्रदर एटमॉस्फेयर गसन बनाने यम जंड वंड अलग सह साइडस थवन मगर वंकन इशूज रिलेटेड दुकानदार परेशान अनएम्प्लॉयमेंट आज अखबारस पे लिखित 32% तो 32% यूथ अनएम्प्लॉयड सह कित पे सेक्टर रिटेल सेक्टर सोन करहन यह रिवाइव अगर यह रिटेल सेक्टर अगर दुकानदार करहन ये नफर मुलाजिम तन लगन 4 बड़ कत कह मगर यकजहती हज जरूरत सारे दपान वह त्रो मा करो पन बैनर्स मा करो मिस यूज मा करो बैनर्स पन इकवटे यम ग्रो कर ट्रेड कम्युनिटी फैमिली शुक्रिया. सवाल अगर करो कमिस करो जवाब तह कोर सारे मगर यह वन तो तुम चीज तुम ऑर्गनाइजेशन लुट एरिया वो लाल चौकस मज वो 2-3 ऑर्गनाइजेशन पे बजे बजे ऑर्गनाइजेशन KTMF तथ मज KTMF 1 and KTMF 2 3 3 तो मे वन तो तुम अत पे दिवान अत पे जोर कि यूनियन कित पे करो स्ट्रेंथ कित पे गई KTMF अपुई तथ पे क्या काम तुम करान वन तो वो कि मतलब कस कुन कैमरा फिरान तो तुम बुथ चूरी ति गोस गन कि अगर तुम छू दिल साफ क्या काम करते हैं वो हमने आपको सबूत दे दिया. ये ट्रेडर्स लाल चौक ट्रेडर्स एसोसिएशन तो ये यहाँ खड़े हैं, ये बैठे हैं. जब हमने इनके साथ कोई बात की है तभी रिजल्ट आ गए, ये हमारे पास आ गए और हमारे साथ जुड़ जाते. बाकी ये जो कैमरा पर हाथ लगा कर बैठे हैं मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर इस काम के लिए यहाँ आ रहे हो बाहर निकलो यहाँ से. मैं आप लोग नहीं आप मुझे बोलो आप देखो यकजहती के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. आप क्या बोलते क्या करेंगे? अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट है इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी जाना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए जाएंगे. आप क्या बोलते क्या करेंगे? हमने काम पब्लिक के कराने हैं. पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की आपके ट्रेड में काफी तरह फैक्शंस हमारी मैं उसकी बात कर रहा हूँ. अपना काम खुद कराएं. हमारी जितनी एसोसिएशन है ये पब्लिक पर ही मुनसर करती है, ये मैंने नहीं घर में बनाई है. यहाँ देखो ये ट्रेडर्स फेडरेशन के लोग बैठ, यहाँ देखो ये हम क्या नाम है शिकारा वालों के ये प्रेसिडेंट बैठा है, ये भी सुना रहा था मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है. ऐसे हमारे यहाँ और भी फोरम्स है बहुत सारे. सवाल ये है कि ये पब्लिक है,
आप क्या बोलते हैं, ये एसोसिएशन का मैं क्या हूँ? बाकी ट्रेड को इकट्ठा करने के लिए आपकी क्या कोशिश है? हमारी कोशिश ये रहेगी हम अपने सारे जितने भी मसले मसाइल हैं एकजुट होकर बना लें, और जहाँ कहीं पर भी जाना पड़ेगा जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे ये काम होने चाहिए। रोका साहब, जब आप भी गवर्नमेंट के पास जाते हैं, आप एक फैक्शन का नाम लेते हैं, वहाँ पर दूसरी फैक्शन फिर उसी नाम का यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी परेशान हो जाती है कि किस फैक्शन का काम करते थे। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन कब होगी? हमारी तो है ही है कश्मीर इस्लामिक अलायंस है, जिसके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं। बाकी ट्रेड को इकट्ठा करने के लिए आपकी ये नाम लेकर जहाँ हम जाते हैं हमें कोई रुकावट नहीं आती है। साहब मेरे दो सवाल, एक सवाल पहले गुलाब साहब और फरार साहब से और बशीर साहब से, और दूसरा मैं फारूक साहब से करूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि इतिहाद की बातें की जाती है, और इतिहाद की नहज ये है कि अभी ट्रेडरों ने ट्रेड के खिलाफ नहीं बल्कि आपस में वोट का दरवाजा खटखटा है, यानी कि अदावत, नफरत और कदावत का इससे और ज्यादा एहसास क्या हो सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ इस वक्त मुकदमाबाजी जारी है। तो कौन सी राह आपको नजर आ रही है कि ट्रेड को एक ही प्लेटफार्म पर जमा किया जाए, और किस तरह से वो राह निकल सकती है? दूसरा सवाल मेरा ये कि फारूक साहब ने इससे पहले भी कोशिश की थी, शायद मुझे याद है कश्मीर ट्रेडर्स यूनाइटेड फोरम का एक प्लेटफार्म बना था जिसमें तकरीबन उसे 1 दर्जन से ज्यादा तजारती अंजुमनों को जमा किया गया था, और उन्होंने पहल की थी 2022 में एक ही प्लेटफार्म पर सब लोगों को जमा करने की, फिर इंतखाब करने की। तो क्या फारूक साहब को अब भी उम्मीद है, ये दूसरा सवाल मुझसे, कि अब वो जो उनकी कोशिश है वो मैं एक चीज़ अर्ज करूंगा कि कश्मीर इकनॉमिक अलायंस बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर में, जो पिछले 10 सालों से फंक्शन कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से। जितने भी हमारे सेक्टर है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे मटन हो, चाहे हाउस बोट हो, चाहे शिकारा हो, चाहे फ्रूट हो, जितने भी सेक्टर है यहाँ पर उनकी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसमें हम कामयाब हो गए क्योंकि ये कश्मीर इकनॉमिक अलायंस भी एक जगह पे बंद थी किसी बंदे के पास, जिससे हमने छुड़वाया कश्मीर इकनॉमिक अलायंस को। उसका बड़ा सबूत है जो भी बड़े सेक्टर है इस वक्त कश्मीर में, इस टाइम भी एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। उसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट रंगा साहब प्रेसिडेंट है पूरे कश्मीर के गुड्स ट्रांसपोर्ट के हवाले से। उसके साथ साथ हाजी वली मोहम्मद साहब है, शिकारा प्रेसिडेंट का एसोसिएशन है, इस वक्त भी फंक्शन कर रहा है, एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। टूर एंड ट्रैवल्स है यहाँ पर, जान मोहम्मद साहब ये भी एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। उसके साथ साथ महराजुद्दीन गणेश साहब है, मटन पोर्टदार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी है और सेक्रेटरी भी है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, ये भी इस वक्त बैठा हुआ है यहाँ पर। उसके साथ साथ शेर गुजरी एसोसिएशन जो कश्मीर है, ये भी इस वक्त बैठी हुई है यहाँ पर, ये भी एफिलेटेड है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। उसके साथ साथ टूर एंड ट्रैवल टैक्सी एसोसिएशन जिसका चेयरमैन है कश्मीर का पांडो साहब, वो भी इसके साथ एफिलेटेड है। और फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन कश्मीर बशीर अहमद बशीर साहब उसका प्रेसिडेंट है। कम से कम इस वक्त भी 10 एसोसिएशनें फंक्शन कर रही है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साथ। प्रेजेंट जो हमारे परफेक्ट प्रेसिडेंट है इस वक्त जो कश्मीर में इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, उसका बड़ा सबूत है। तंजीम हमारी स्टिल है। हाँ, आप आज ज्वाइन किया हमारे साथ सेंटर लाल चौक घंटा घर के हवाले से, इनको वेलकम है, क्योंकि जितने भी मसाइल मुश्किलात है इसके हवाले से इनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। रही अब बात KTMF की, बहुत बड़ी तंजीम थी कश्मीर के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन थी कश्मीर के हवाले से, बहुत बड़ा सेक्टर था कश्मीर के हवाले से KTMF। मगर बदकिस्मती की बात है, जिस टाइम भी ट्रेडरों का मसला आया, जिनके पास एसोसिएशन थी पिछले 10 सालों से, मेरे ख्याल से उनके हवाले से कोई काम नहीं हुआ ट्रेडरों के हवाले से। आज हमें लग रहा है जो बशीर साहब ने बेड़ा उठाया कश्मीर KTMF की तरफ से, जो फरहान साहब ने बेड़ा उठाया KTMF की तरफ से, ये सही बात है। इसलिए बात नहीं करते इनके हवाले से, हमारे पास इस वक्त बैठे हुए हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं, मगर हम ग्राउंड की सिचुएशन चेक कर रहे हैं, इस वक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके हवाले से। मेरे ख्याल से आगे कामयाब हो जाएंगे इतिहाद के हवाले से। इनकी कोशिश आज चल रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जाते हैं। खासकर मैं श्रीनगर शहर की बात करूंगा, जितने भी एसोसिएशन है यहाँ पर श्रीनगर के हवाले से, ट्रेडरों के हवाले से, जितने भी मार्केट है,
मेरे ख्याल से उनके हवाले से बशीर साहब ने, फरहान साहब ने, जो फरहान साहब का, बशीर साहब का टीम है इस वक्त भी रवा दवा है। अगर KTMF मजबूत हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर में, जिनके पास ये KTMF है उनके सामने ये निकल जाएगी। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खुशकिस्मती होगी यहाँ के ट्रेड रूट के हवाले से। मेरे ख्याल से उसमें मीडिया का अहम रोल बनता है, उसमें उन लोगों का अहम रोल बनता है जो इस वक्त बाजार कम्युनिटी में प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, उनका अहम रोल बनता है। उनको देखना पड़ेगा किसने हमारे लिए ठीक किया पिछले 10 सालों से, कौन इस वक्त फंक्शन कर रहा है KTMF के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से। मेरे ख्याल से उनको भी ये देखना चाहिए। रही अब बात कश्मीर इकनॉमिक अलायंस का, क्या रोल रहा पिछले 5 सालों से इत्तेहाद के हवाले से। मेरे ख्याल से 2019 के बाद बहुत बड़ा सेटबैक था बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। बिजनेस संभला नहीं कम से कम 6 महीने 7 महीने बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से। उस टाइम हमने ट्रेडर्स रिहेबिलिटेशन फोरम का ऐलान किया ताकि हम इत्तेहाद में जाएंगे। जितने भी हमारे ट्रेडर बटे हुए इत्तेहाद के हवाले से उनको हम इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हम इत्तेहाद करेंगे। जो भी मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट साहिबान थे यहाँ पर ट्रेड के हवाले से, उनके पास हम गए, मगर उनको यही एक परेशानी थी, अगर ये इत्तेहाद हो गया, इत्तेहाद में ट्रेडर गया, जो हमारी इजारा अदारी है पिछले 10 सालों से, पिछले 12 सालों से खत्म हो जाएगी। क्योंकि सिंसियरिटी ये होनी चाहिए, अगर वो ट्रेड के हवाले से सीरियस है, उनको स्टेप डाउन होने की जरूरत है, किसी और को मौका देने की जरूरत है। लिहाजा करके आपके वसादत से मैं फिर इंशाअल्लाह रहमान हम एक कोशिश फिर करेंगे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से। इस ट्रेड को इत्तेहाद होना चाहिए, ये ट्रेड मजबूत होना चाहिए। मेरा सवाल वही है कि KTUF आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, 2020-21 में बातचीत भी हुई थी। मेरे ख्याल से 13 तिजारती अंजुमन है जो KTMF 1, 2, 3, 4, 5 उस वक्त थी, उनके साथ बात भी हुई थी। उस वक्त बात नहीं बनी, तो अब आपको क्या वो जो आपने वो मशक की थी, वो रिक्रेजी की थी, क्या वो राय फिर साहब हुई, क्या अड़चने थी? अड़चने बहुत थी, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से जो बैठे हुए विराजमान है प्रेसिडेंट के हवाले से, वो स्टेप डाउन होने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे ख्याल से अगर 13 KTMF थी उस टाइम, 12 को हम कामयाब हो गए एक टेबल पे लाने के हवाले से, मगर मेरे ख्याल से एक ही प्रेसिडेंट था जो उस टेबल पे नहीं आया। 12 प्रेसिडेंट साहिबान सिंसियर थे उस टाइम। इत्तेहाद होना चाहिए, अगर किसी का टाइम हो गया इलेक्शन के हवाले से, उसको स्टेप डाउन होने की जरूरत थी, मगर उनको ये लग गया उस टाइम हम स्टेप डाउन होने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा करके इजारादारी जो हमारी है वो चालू रहनी चाहिए। इसके बाद भी हम फिर वही एक्सरसाइज करेंगे बशीर साहब के साथ, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है। ये हम नहीं कहेंगे सारा ट्रेड हमारे साथ जुड़ना चाहिए कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के साइड से, मगर हमारी ये कोशिश रहेगी ये ट्रेड इत्तेहाद में होना चाहिए। बशीर साहब को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आगे आएंगे, इसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, इसको आगे आने की ज़रूरत है, ताकि जो ये ट्रेड बिखरा हुआ है इस वक्त सबसे बड़ा सेटबैक है ट्रेड के हवाले से। आप देखें JK बैंक की क्या सूरत है, आप देखें उसको बनाने में कश्मीरी ट्रेडरों ने बहुत मेहनत की। अगर JK बैंक बन गया जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये यहाँ की ट्रेडरों का असासा है। उस आप देखें ट्रेडरों की क्या परेशानी है, बहुत से टैक्सों के हवाले से परेशानी है। आप देखें बिजनेस नहीं है यहाँ पर। बार बार हमने कोशिश की, अपील की यहाँ की स्टेट सरकार को, दिल्ली सरकार को, रिहेबिलिटेशन पैकेज का ऐलान होना चाहिए। ऐसा करके हम उसमें कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। मगर आपको भी ये देखना है सही क्या है गलत क्या है। मेरे चीफ तर्जुमान साहब ने कहा, ये मेरा बड़ा है, मैं इसके अंडर काम कर रहा हूँ, रंगा साहब के अंडर। रंगा साहब के साथ मैंने काम किया, मैंने सीखा, इसने सही बात की, क्योंकि हम वाइट कॉलर लोग हैं इंशाअल्लाह रहमान खुदा के फजल से। ना हमें कोई सियासत के लेना देना है, ना हम किसी इंटरेस्ट के लिए ये ट्रेड चलाता है। हम ये ट्रेडरों के बेनिफिट के लफ्ज, तजारत यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, ताजिर यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, हाउस बोट सेक्टर यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, होटल सेक्टर यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, फ्रूट ग्रोवर यहाँ पर मजबूत होना चाहिए। जितने भी तबका फिक्र के लोग हैं, रंगा साहब ने सही कहा, इसके हवाले से हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, कोशिश भी कर रहे हैं, इसके आगे भी कोशिश करेंगे ताकि ये ट्रेड इत्तेहाद में हो जाए इंशाअल्लाह रहमान। जो कल्प्रिट है यहाँ पर कश्मीर में, उनको भी हम देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान, जिन लोगों ने ट्रेड को तबाह किया। लिहाजा करके आपको भी देखना चाहिए सही और गलत क्या है, ग्राउंड पे कौन इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, ग्राउंड पे कौन इस वक्त काम कर रहा है,
किसको जाती मुफाद है, किसको मुफाद है, ट्रेडर मजबूत होना चाहिए यहाँ पर कश्मीर में। उसके हवाले से आपको भी देखने की ज़रूरत है, यहाँ के ट्रेडर को भी देखने की ज़रूरत है। यही हमारी फरहान साहब, मुख्तसर सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले तो मतलब ये मुबारक की बात है कि तकसीम दर तकसीम में आपने यकीन नहीं रखा, KTMF से अलग हो गए, अलग जमात नहीं बनाई। बशीर साहब ने इसको ताथीरी अमल या प्यूरिफिकेशन का नाम दिया है कि KTMF में प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए अलग अलग लोग इसे। क्या आपको लग रहा है कि जो मतलब सिलसिला आपने शुरू किया है, बशीर साहब ने शुरू किया, या बाकी KTMF के लीडरों ने शुरू किया है कि KTMF को बकौले बशीर साहब की प्यूरिफाई किया जाए, साफ किया जाए, असल लीडरशिप को सामने लाया जाए? क्या आपको कहीं उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि KTMF जो असल KTMF थी, जो असल तजारत की तर्जुमान थी, उसमें असल लीडरशिप सामने आई? देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, KTMF का जो इस टाइम रोल रहा, जब ये इलेक्शन प्रोसेस उधर स्टार्ट हो गया, मेरे ख्याल से एडहॉक जो प्रेसिडेंट है और उसकी टीम है, आज की डेट में दुकानदारों के लिए कुछ नहीं कर पाई जब से उनने ये ले लिया। तो उस सिलसिले में जो हमारे मार्केट्स जितने भी है, सिटी सेंटर के जितने भी है, वो सफर हो रहे थे। उसलिए हमने ऐसा किया कि KTMF अपनी जगह है, वी सपोर्ट KTMF, लेकिन वी सपोर्ट आफ्टर इलेक्शंस। जो इलेक्शन प्रोसेस है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होना चाहिए। उसके साथ हर बाजार है KTMF के साथ। अब उसमें फ्रैक्शंस हुए हैं, वो फ्रैक्शन ये भाई अपने हैं, उनको हम बिठा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं भाई ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है दुकानदारों की। अगर हम ज्वाइंटली सारे बैठे, जिसमें प्रोसेस बशीर साहब कर रहे हैं, क्योंकि बशीर साहब एडहॉक टीम के एक जिम्मेदार है उसमें KTMF के, वो प्रोसेस अपना कर रहे हैं ताकि वो जुड़े आपस में, जितने भी फ्रैक्शंस KTMF के बने हैं। रही बात कि जब तक ना आप खुद मीडिया में है, आप ये देखिए, फोटो सेशंस और सेल्फी सेशंस के साथ हम नहीं है, फोटो सेशंस और सेल्फी सेशंस के साथ हम नहीं है। हम सिर्फ है जो बेसिक प्रॉब्लम्स है दुकानदार की, जो कि चाहे टैक्स के बारे में है, चाहे दुकानदारी बिजनेस के बारे में हो, और डिग्निटी एंड ऑनर जो दुकानदार को मिलना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यही बात रही, आपने क्वेश्चन किया था अदालत के दरवाजे क्यों खटखट है, इसके लिए मैं जवाब दे दूंगा। ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल लाल चौक ने जो बाज़ाब्ता इलेक्शन किया था, बाज़ाब्ता नुमाइंदा अप्रूव किया था, मगर 6 महीने के बाद हमने उस नुमाइंदे को उतारा है। क्यों उतारा है? उसने अपनी ग्रीड के लिए काम किया है। जिसको उसने बोला आपने गलत किया, उसको FIR दिया। मेरे भाई बिलाल साहब ने बोला काम गलत हो रहा है, इसको FIR दिया था। मैंने बोला काम गलत हो रहा है, मुझे FIR मिला था। अब वो ग्रुप KTM के 3 ग्रुप है, 1, 2, 3, वो ग्रुप ATM 1 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सब के सब अनअप्रूव्ड है। अब वो जो शिकस्त खोर ग्रुप है, वो एक ग्रुप बन गया था। वो 18 ग्रुपों को तकलीफ देते हैं। हमने दुनिया ढूंढ के कहा था हम कहाँ जाएंगे, हमें एक ही नज़र मिली थी, वो हो गया इस्लाम का अलाइनमेंट, जिससे हमारी काम हो जाएगी। क्योंकि हमारे बहुत से मसले हैं। हमारे 60 फुट रोड को 40 फुट किया था। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने आज तक बात नहीं की भाई 60 फुट रोड को 20 फुट क्यों किया है, 20 फुट क्यों खाया है। हमारे पास स्ट्रेट वेंडर्स है, हमारा दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठा है, वो अपने काम करते हैं। जिस वक्त इलेक्शन की बात हुई थी, पुलिस इसमें बीच में आएगी। हमने बोला पुलिस को क्या कर रहे हैं, वहाँ झूठ बोल रहा था। हमने अच्छा किया था, हम दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन अनासरों को वापस खुद पे बैठने की जरूरत है। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, मुबारक मुस्तक है हमारे बड़े भाई साहब रंगा साहब, फारूक साहब, ठीक हुआ भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफररकू, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हमारे बड़े भाई साहब रंगा साहब यहाँ बैठे हैं, फारूक साहब मेरे साथी बैठे हैं, या बाकी जो भी हजरात यहाँ, फरहान साहब है, मजीद साहब पुराने
सबसे सीनियर मोस्ट कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की जोमा है, ये मुबारक के मुस्तहक हैं कि हर किसी की यही राय है कि एक ऐसा प्लेटफार्म वजूद में आ जाए जिसके तहत सारी जो ताजर बरादरी है एक ही झंडे तले आ जाए। मैं यहाँ पर ज़्यादा बात करने के लिए सामने आया हूँ कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, जिसका इलेक्शन पिछले 2022 को वो ड्यू हुआ था और इलेक्शन नोटिफिकेशन भी निकली थी, लेकिन हमारा जो गर्ज है उसमें बिल्कुल हमारी जाती, हर किसी ताजर की एक जाती है, बहैसियत एक दुकानदार में यहाँ कहना चाहता हूँ, बहैसियत एक नुमाइंदा नहीं, बहैसियत एक ट्रेड रहनुमा नहीं, बिल्कुल उसके हक में नहीं हूँ। मैं एक बहैसियत एक दुकानदार कहना चाहता हूँ कि जो अपने जो आइन भी जो है कि अपने बाजार से पहले इलेक्शन लड़ के आए, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें आगे आके वोट डाल के जिसको भी बनाएंगे उसके पीछे हम सारे हैं। उसमें मैं तकरीबन हर एक फैक्शन के साथ मिला हुआ हूँ, हर एक फैक्शन के दरवाजे पे मैं गया और उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं, हम किसी भी सूरत में अपने वजूद को तोड़ना चाहते हैं। और कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का जो एक ही बैनर है, 2011 के बाद जितने भी फैक्शन उसके हुए हैं वो सारे एक ही झंडे तले, लेकिन मुझे लगता है चंद लोगों ने इसको अपनी मीरास बना के रखा है और अपनी हटदर्मी के तहत आगे और किसी को आने नहीं देते हैं। और आज की जो मुझे लगती है एक उम्मीद की किरण, मैं जो मेहनत इसमें कर रहा हूँ, मेरे साथ फरहान साहब है, मेरे साथ मजीद साहब है, मेरे साथ पूरे 17 बाजार हैं इस खासकर कमर्शियल हब के जो लाल चौक का जो कमर्शियल हब, जिसमें हाल ही में हमने सीएम साहब के साथ भी मीटिंग की, एसपी साहब के साथ मीटिंग की, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग की, ड्यूकॉम साहब के साथ मीटिंग की है। और अभी फोन जस्ट अभी हमें फोन आया है कि यहाँ ड्यूकॉम के साथ आपकी मीटिंग होगी कल, उसमें भी हम इकट्ठे जाएंगे। लेकिन यही है कि सब लोग जो ये काम कर रहे हैं वो अपने अपने बाजारों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कोई खुद साख्ता उसमें से नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि ऐसा ही हर पूरे वैली में होना चाहिए और एक ऐसा प्लेटफार्म हो जाए जिसमें कयादत वो आ जाए, वो बाज़ाब्ता वो इन्हीं इलेक्टेड। साहब मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपने बताया कि कुछ लोगों की ये मीरास बन के रह गई है, कल तक जिनके साथ में आप थे कल तक वो ठीक थे, आज वो ठीक नहीं है। नहीं, मैंने कभी किसी के फॉर एग्जाम्पल आपने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने भी किसी का नाम नहीं लिया, सही बात, लेकिन आपने जो अभी बताया कुछ लोगों की ये मीरास बन गई है, सही बात। कुछ के मुतलिक आप क्या बताएंगे, कल तक उनके साथ में आप होते थे, देखिए अगर वो स्प्लिट हुए हैं, आज उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, क्यों? यही तो प्रॉब्लम है। देखिए इलेक्शन का प्रोसेस जब बचता है, हर किसी का अपना डेमोक्रेटिक राइट होता है कि उसका अगर वो एलिजिबिलिटी में आ जाए वो अपने हिसाब से आगे चले, लेकिन आइन को मलहूज़ नजर रखकर, आइन से बाहर जो गया वो मीरास अपनी बनाता है। आइन में रहकर जो भी काम करेगा उसके पीछे हम फिर भी रहेंगे, हम उसी के साथ हैं जो आइन को मलहूज़ नजर रखकर उसके पीछे चले, न कि अपने आप को आइन से ऊपर कर दे, उसके पीछे हम कभी नहीं। जब तक आइन के अंदर वो थे हम उनके साथ थे, आइन के बाहर जब निकल गए वो हम उनके साथ किसी भी सूरत में नहीं रहे। मुबारक इसकरान वेलकम करें। Valid point.
Запас я, Фаракамат, не мандапас там.